Hello friends, this is CS UDIT DUA. Welcome you all to my YouTube channel, and today we are going to talk about how to start your preparation for June 19 CS exams. Yes, you heard right. We will be talking about how you can start your preparations for June 19 CS exams. If you are going to give your June 19 exams, company secretary exams, and if you are in CS executive or CS professional, whether in old course or in new course, then this video is for you. Whether you have given the December exams or you will be giving June exams first time, all of the students will be covered in this video. And please watch this video till the end and do like, share and subscribe, because today we will be talking how you can start your preparations. Because if you have given your December attempt, you have enjoyed around 20 to 25 days, and you must be enjoying this wonderful chilly winds and wonderful weather. If you are in North India, it's wonderful winters going on and you must be enjoying. But along with the enjoyment, we have to start our preparation for June 19 CS exams. CS students listening to me, whether you are in old course or whether you are in new course, I categorize in three categories. Number one category, student listening to me or in old course or new course, I'm talking to executive as well as professional students. Yes, I'm talking to as well as foundation students. Given both groups, number one category, if you are a student and given both groups or all the modules in December 2018, you have given the exams in December 2018, both the groups of executive or all the groups of professional, there are three groups, and all the exams went well. सारे exams आपके अच्छे हुए हैं, आपने दोनों groups दिए हैं, and all the exams went well, and 90% confident you are 90% confident that yes, you are going to pass the exam. Because 90% हमें पता चल जाता है what we have done. If you have 90% confidence and 10% is luck, 10% मैं यहाँ पे luck मानता हूँ, क्योंकि 90% स्टूडेंट का efforts हैं, confidence है. अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, because there must be very rare students जो दोनों ग्रुप्स देके यहाँ पे बैठे हैं. और अगर आप मेरे कैटेगरी में हैं कि आप 50-50 एग्जाम्स ओके हुए हैं, your one or two exams went well and one or two exams went okay, one or two exams did not well. Overall your exams were okay, and you're not that much confident that yes, you can pass or you cannot pass. You are 50-50 category exam okay, then congratulations, you fall in category in which I used to fall. Yes, you fall in that category. Okay sir, if you fall in first category 90% confident, बहुत अच्छी बात है सर. अगर आप एग्जीक्यूटिव के दे रहे हैं, दे चुके हैं एग्जाम्स बोथ ग्रुप के, then what you should do, search for articleship. आगे बढ़िए, डोंट वेस्ट योर टाइम. आपको प्रोफेशनल में आगे 90% आपको जाना है. यू कैन डू वर्क, यू कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स, यू कैन वर्क ऑन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट. पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आप छोटे मोटे कोर्सेज कर सकते हैं या यूट्यूब से आप सीख सकते हैं. आप बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं, जीएसटी का एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 है. आप जीएसटी के सीजीएसटी एक्ट, इनकम टैक्स, अभी फाइनेंस एक्ट 18 है, अभी 19 का बजट भी आ जाएगा. ब्लॉग्स आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट द ब्लॉग्स इन some of the good websites बहुत सारी हैं. इंटरनेट पे आप अपने आर्टिकल्स, अगर आपको लिखने का शौक है तो आप अपना नेम फ्लॉन्ट कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं. आपको you have to read the newspaper. Yes, you have to read the newspaper. Which newspaper I am talking about? पंजाब केसरी, नवभारत टाइम्स? नो, ऐसे अखबार नहीं पढ़ने हैं. आपको इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस या बिजनेस स्टैंडर्ड्स का, आपको फाइनेंशियल डेली जो बिजनेस न्यूज है वो पढ़ने हैं. यू कैन वॉच CNBC TV 18, you can watch Z Business, ऐसे channels भी आप देख सकते हैं. You have to work on your communication skills, brother and sisters, because अगर आप CS professional में आप सारे groups दे चुके हैं and you are about to give and you are about to become a company secretary and you are not good in communication skills, then mind you cannot work well in the corporates, because corporates में क्या चाहते हैं साहब की communication skills. Your personality should be absolutely fantastic. आपको communication में मास्टर बनना पड़ेगा. यू कैन वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. बहुत तरीके हैं, इंटरनेट आपके पास है, स्मार्टफोन आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है. आई डोंट हैव टू टेल यू दैट हाउ कैन यू वर्क. यू हैव टू प्रिपेयर योर CV or resume. Why you have to prepare your CV or resume? Because if you have to go for a job after the professional, then also you need a CV. And if you have to prepare for the
articleship or internship, then also you have to prepare your CV and you have to search your internship. अगर आपने अभी internship करनी है, whether in company or practicing assembly secretary, and you have to work in for the internship, और आपको area specify करने हैं. You have to work for the areas कि आपको कौन से area में काम करना है. अगर आपको practicing company secretary बनना है, then it is advised that you should work under a good PCS having 15 to 20 years of experience. And if you want to be a company secretary in a listed company, then it is advised always that you should work in a company listed on the stock exchange. यहाँ पे आपको ये काम करने हैं. अगर आप मेरी कैटेगरी में हैं, ये वाले स्टूडेंट्स हो चुके हैं. इफ यू कॉल इन दिस कैटेगरी 50% एग्जाम्स अच्छे हुए हैं, 50% अच्छे नहीं हुए हैं, तो सर मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि हम भी भरोसा रखते थे कि हाँ हम पास हो जाएंगे. अलॉन्ग विद दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने अगर ग्रुप 1 दिया है तो आपको उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है. आपको वीक सब्जेक्ट उठाना है, जो आपका सब्जेक्ट वीक रहा, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं हुआ. वेदर योर कंपनी लॉ वाज नॉट गुड, यू हैव टू पिक अप द कंपनी लॉ. वेदर योर टैक्सेशन वाज नॉट गुड, आपको टैक्स दोबारा से पढ़ना पड़ेगा. अमेंडमेंट्स की बात करेंगे साहब. ग्रुप 2 अगर आप अभी आपको ग्रुप 2 आपको फर्स्ट टाइम देना है और आपकी अगर कोचिंग्स चल रही हैं साहब, तो आपको कोचिंग्स मार्च एंड तक कंप्लीट करनी ही है. यू हैव टू कंप्लीट ऑल योर कोचिंग्स बाय मार्च एंड. व्हाई मार्च एंड? बिकॉज इफ यू आर न्यू कोर्स you have to give your pre-exams till March, and yes, you have to give your pre-exams whether in professional or executive. You have to give your pre-exams as well. अगर आप इस कैटेगरी में हैं, बहुत अच्छी बात है. सेकंड कैटेगरी क्या है? given one group, you have given your one group and will give given one group in December 18, और आप सेकंड ग्रुप जो है या अदर मॉड्यूल्स ऑफ प्रोफेशनल विल गिव इन जून 19. तो सर आपके यहाँ पे भी 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स बन जाते हैं. आप 90% कॉन्फिडेंट यहाँ पे हैं, जो बहुत कम चांस है. या यू आर इन माई कैटेगरी 50-50 90% कॉन्फिडेंट है, तो जस्ट वर्क ऑन द ग्रुप विच इज रिमेनिंग. अगर ग्रुप 1 दिया है तो उसके ऊपर काम ना करें, सिर्फ ग्रुप 2 के ऊपर काम करें और आगे बढ़े. राइट, इसको अभी आपको टच नहीं करना है, सिर्फ जो रिमेनिंग ग्रुप है उसके ऊपर आपको काम करना है. 50-50 है तो सर यही वाली बात आ जाती है, यू हैव टू वर्क ऑन योर वीक सब्जेक्ट. ग्रुप 1 भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ कर रहना पड़ेगा और ग्रुप 2 भी साथ में करना पड़ेगा. दिक्कत ये है इन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम समंदर में उतरने वाले हैं, दे आर द फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट इन जून 19, एंड ऑलवेज से कि फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स जो एग्जाम देते हैं, दे हैव अ डिफरेंट लेवल of knowledge, they have a different level of confidence. उनका confidence first time अलग ही होता है, क्योंकि सर first attempt is a golden attempt, और कोशिश ये करनी चाहिए कि पहली बारी में निकल जाए. फर्स्ट अटेम्प्ट में है तो सर आपको उस हिसाब से करना है. पहली बात क्या है सर? पहली बात क्या है? आपको अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट या टॉपिक के ऊपर काम करना है. ये काम आपको हर जगह करना है. अगर आप एग्जाम दे के आए हैं तो आपको पता है कि आपका वीकेस्ट या सब्जेक्ट या टॉपिक कौन सा है, क्योंकि जो आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, जो टॉपिक आपको नहीं आता था, दैट इज योर वीकेस्ट सब्जेक्ट और टॉपिक. और अगर आपने एग्जाम देने हैं, देन बाय योर प्री एग्जाम, आप अगर न्यू सब्जेक्ट्स न्यू सिलेबस में है तो प्री एग्जाम का जो आपका रिजल्ट आ रहा है, तो आपको पता चल रहा है दैट व्हाट इज योर वीकेस्ट सब्जेक्ट और वीकेस्ट टॉपिक. सबसे ज्यादा टाइम इसके ऊपर लगाना है दोस्त. एंड डोंट वरी अबाउट द अमेंडमेंट्स डेफिनेटली है जून 19 के लिए, बट उसके लिए परेशान नहीं होना है, हाइपर नहीं होना है. आई रिसीव सो मेनी मैसेजेस, सर अमेंडमेंट्स किसके सब्जेक्ट में है, अमेंडमेंट्स. उसकी सर बातें हर टाइम नहीं करनी है. यस 10 to 15% सब्जेक्ट सिलेबस चेंज हो जाता है, बट सर 80% तो सेम ही रहता है ना. उसके ऊपर पहले 80% फोकस करेंगे और अमेंडमेंट्स को हम सारा कवर करके जाना है. अमेंडमेंट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यस यू हैव टू डिसाइड वन ग्रुप और बोथ ग्रुप as soon as possible, whether you are giving first time exam in June 19 or you have to give the exam again. आज आपको कम से कम time पे you have to decide whether I should go for the first group or whether I should go for the second group or I should go for the both group. सर ये क्यों डिसाइड करना जरूरी है? जब तक आप ये नहीं डिसाइड करेंगे उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन आगे करने में दिक्कत आने वाली है. सर ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है. अगर आपने एक बार एग्जाम दिए हैं तो सर आप अपना एक प्रोविजन बना के चलें कि 1% मेरा रिजल्ट नहीं अच्छा आता तो उसके बाद मेरे को बोथ ग्रुप के लिए जाना है, या मेरे को वो वाला एग्जाम देना है, वो वाला ग्रुप
देना है जो मेरा क्लियर नहीं हुआ है, या मुझे दूसरा ग्रुप देना है। आपको आज से सर बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आपने एक ग्रुप दिया है और गॉड फॉरबिड वो ग्रुप नहीं होता है, राइट। प्रिपेयर स्टडी शेड्यूल, मैं स्टडी शेड्यूल आपका बनवाऊंगा, इस वीडियो में मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। स्टडी शेड्यूल आपको रिजल्ट्स तक, जो हमारा 25 फरवरी की डेट है, आपको तब तक एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि आप ये सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, इतने इतने घंटे पढ़ेंगे। स्टार्ट स्टडिंग 4-5 आवर्स, पूरा दिन पढ़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, इंजॉय करें, इंजॉय योर टाइम विद योर लव वंस, इंजॉय करें दोस्त, क्योंकि सर 4-5 घंटे अगर हम पढ़ते रहे रिजल्ट तक तो सर इजी रहेगा। आपका एकदम से फ्लो आपका टूटना नहीं चाहिए, एंड आफ्टर रिजल्ट्स एंटिल मे एंड आपका एक अलग शेड्यूल बनेगा, राइट। अमेंडमेंट्स की जो टॉपिक्स, अमेंडमेंट्स की जो बहुत बातें आ रही हैं, मैं आपको बता दूं कि जून 19 का एग्जाम अगर आप एग्जीक्यूटिव का दे रहे हैं या प्रोफेशनल का दे रहे हैं, न्यू प्लस ओल्ड दोनों में सिलेबस की बात कर रहा हूं, तो कंपनी लॉ में सर अमेंडमेंट्स हैं, डेफिनेटली है। कंपनी लॉ का जो भी अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशन है 1 दिसंबर 2018 का, 18 तक सारी अमेंडमेंट्स हमें एप्लीकेबल है। और इसमें मेरी क्या है, कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो है, कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो पास हुआ था, कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 नवंबर 2018 में पास हुआ था, ये भी आपका इंक्लूड कर दिया गया है। इन सब का सप्लीमेंट इंस्टीट्यूट ने इश्यू कर दिया है, घबराने वाली बात नहीं है। ICSI की वेबसाइट पे जाएंगे, एकेडमिक सेक्शन पे जाएंगे तो गाइडेंस फॉर जून 19 पे जाएंगे तो आपको इन सब का सप्लीमेंट मिल जाएगा। अब मैं आई गिव द लिंक बिलो दिस वीडियो, राइट। तो कंपनी लॉ आपको कवर करना है, इनकम टैक्स का फाइनेंस एक्ट 18 हो गया है, फाइनेंस एक्ट चेंज हो गया है। आई ट्राई टू कम अप विद द वीडियो, फाइनेंस एक्ट 18 की मैं वीडियो बनाऊंगा। GST की वीडियो, इसमें फाइनेंस एक्ट 18 के अमेंडमेंट्स है अप टू 1 दिसंबर 2018, इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। कंपनी लॉ की भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो लाऊं, आई कैन नॉट कमिट बट कोशिश पूरी रहेगी। सेक्रेटरियल ऑडिट, ये प्रोफेशनल के सब्जेक्ट्स हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंसेस एंड ड्यू डिलिजेंस, इसमें भी अमेंडमेंट्स हैं। CR वैल्यूएशन, इंसॉल्वेंसी में भी अमेंडमेंट्स हैं। एंड ऑल द सब्जेक्ट्स कवरिंग कंपनी लॉ जितने भी सब्जेक्ट्स में आता है, मल्टीप्लिनरी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे केस स्टडी का सब्जेक्ट है, चाहे सेक्रेटरियल ऑडिट का है, कंप्लायंसेस में है, गवर्नेंस में है, कहाँ जहां भी कंपनी लॉ आता है तो सारे ये कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स वहां लग जाते हैं। ये सब्जेक्ट्स में मेरे अमेंडमेंट्स हैं, राइट। करना क्या है सर, सबसे पहले अपना वीक सब्जेक्ट उठाइए, परेशान होने की बात नहीं है सर, बहुत अमेंडमेंट्स हैं, बहुत अमेंडमेंट्स हैं, बहुत अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट से घबराना नहीं है। काम आज से करेंगे हम। टिप्स फॉर स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स के लिए हमें सिर्फ 5 से 6 घंटे पढ़ने की जरूरत है और हमें सारा सब सिलेबस कोचिंग के हिसाब से मार्च एंड तक कंप्लीट करने का टारगेट रखना है। मार्च एंड में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो मेरे न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, मार्च तक मुझे सर प्री एग्जाम भी क्लियर करना है और मुझे कम से कम 60 डेज चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। मेरा अप्रैल और मई 2 महीने मुझे चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। आई नीड सेल्फ स्टडी 2 months time, then only I can pass my exams, right। कोचिंग्स आपको मार्च एंड तक कंप्लीट करनी है। शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं टू रिवाइज बिफोर द एग्जाम्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए। मैं कंपनी लॉ कैसे पढ़ें, उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, मैंने वीडियो बनाई हुई है, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सर दिक्कत ये है कि हम एक बार पढ़ के शॉर्ट नोट्स क्रिएट करके समझ के अगर हम नोट्स बना लें तो हम रिवाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हम, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, लाइक हम FM है न्यू सिलेबस में, फॉरेक्स है, अकाउंट्स है, टैक्सेशन है, टैक्सेशन भी अब डिस्क्रिप्टिव हो गया है तो सर उसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे। केस लॉज जो भी हैं उसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे। सेक्शन नंबर्स हम याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सर हम लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ, नॉट क्रैम द लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम की कदर, हम टाइम की कदर को समझिए सर। 6 मंथ्स की कदर, 6 महीने की कदर आपसे ज्यादा और मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इट्स अ टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन व्हाट आई हैव इन्वेस्टेड। 6 महीने, जून दिसंबर, जून दिसंबर, जून दिसंबर, जून दिसंबर। सर मैंने भी जून दिसंबर खेला है, आप भी खेल रहे हैं, भगवान ना करे आप खेलें, लेकिन सर टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, कैपिटलाइज करना है, यूज करना है, इन्वेस्ट करना है। सर टाइम बहुत कम है, स्केर्सिटी
स्कैरसिटी ऑफ टाइम है, तो जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे टाइम भी आपको वेस्ट करने वाला है। तो अभी अभी रिजल्ट में अराउंड 1.5 मंथ है, 1 मंथ से ज्यादा है, तो सर टाइम को वेस्ट नहीं करना है, हमें 5 to 6 आवर्स स्टडी करनी है। रेस्ट यू कैन एंजॉय योर डे, यू कैन एंजॉय विद योर लव्ड वंस, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड एंड व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ट्विटर एंड व्हाटएवर, यूट्यूब, यू कैन एंजॉय सर, बट 5 से 6 घंटे पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करनी है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। दिस माय गोल्डन स्टेटमेंट। वर्क हार्ड करेंगे, गिव योर एफर्ट्स, हम अपने एफर्ट्स बेस्ट डालेंगे जून के लिए, एंड यू विल श्योरली सक्सीड। सर हम पास डेफिनेटली हो सकते हैं प्रोवाइडेड हम आज से शुरू करें। कैसे शुरू करें? अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट से उठाएं। आपने कुछ भी नहीं किया तो सर स्टडी मटेरियल स्टार्ट कीजिए। स्टडी मटेरियल की दिक्कत ये है कि अपडेटेड नहीं है सर, जो भी है, जो भी आपने अगर दिसंबर में एग्जाम्स दिए हैं तो उसी वाले मटेरियल से अभी पढ़िए, उसके साथ आप अमेंडमेंट्स को ऐड कीजिए। आप न्यू सिलेबस में हैं तो इंस्टीट्यूट ने सर न्यू सिलेबस का स्टडी मटेरियल लॉन्च कर दिया है, आपका वो अपडेटेड है, प्रोफेशनल का भी लॉन्च हो गया है, इट्स अवेलेबल, ऑफ द सॉफ्ट कॉपी इज अवेलेबल, हार्ड कॉपी मिल गया है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सर उसी से पढ़िए, एंड अमेंडमेंट्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे। सप्लीमेंट इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया है, घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट में कंपनी लॉ की सर बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है, बट अगर आ जाती हैं आफ्टर 1 मंथ और 15 डेज तो आप अपडेटेड बुक्स भी बाय कर सकते हैं। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड लॉट्स ऑफ वीडियोस आर कमिंग लाइक दिस। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।